Hello everyone. Everyone can hear me? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है. अच्छा, जो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे माइक से वो चैट में बता दें, यस लिख देंगे या वी कैन हियर यू, जस्ट सो वी कैन गेट द हाँ. आइडिया। और इन केस अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है, कोई इस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो भी प्लीज इन द चैट में शेयर कर दें. स्क्रीन नज़र आ रही है। आप ये हाइड कर दें वो जो नीचे नोटिफिकेशन है। परफेक्ट। Okay. So, hello everyone. Thank you for joining the Tableau user group event. So, today we have some speakers and they will be sharing some valuable information and knowledge with us. So, let me start introducing myself. I am Rida. I have been working as in business intelligence from past 4 years, and I primarily work with Tableau Desktop and Tableau Server. I'm also contributing in the Tableau community by providing solutions in the Tableau related queries and also sharing some useful visualizations and insights with the community. And now let me briefly walk you through the agenda. Um, an introduction to Tableau and the DataFam community. Here will be some words shared by some of our speakers, and you will be knowing about the Tableau user groups and the Pakistan Tableau user group, and also the finally the most important the AI powered insights and some walkthroughs by Car. Let me move towards the next slide. Okay. What is Tableau? Tableau is a powerful data visualization platform that allows users to analyze large and complex data set easily, and also it allows users to create reports and dashboards by using the charts and the graphs, and it also enables organizations to gain some insights and make some data driven decisions. So here I will be sharing a small video clip. अच्छा, ये हमने हृदय This पॉज video. कीजिएगा 1 मिनट। मे बी कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हों यहाँ पर जिनको टैब्लू का ओवरऑल आइडिया ना हो, तो हमने बजाय इसके कि हम अपने वर्ड्स में या टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते, वी फाउंड दिस अ यूजफुल वीडियो ऑन टैब्लू प्लेटफॉर्म which is Yes. very much self-explanatory in terms of understanding what is Yes. exactly a Tableau software is. So Yes. you can proceed, Ridhana. Okay. Okay. Everyone can hear this video. नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आपको अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग विद ऑडियो करनी है। Okay. Okay. एक minute. One. रिता, अगर आप जो है अपना हेडफोन्स हटा के वीडियो प्ले करेंगी तो आपकी आवाज उसके माइक्रोफोन से आ जाएगी हमारे पास। No, basically I'm not using any headphones or earbuds. मैं शेयर करके दोबारा देख लेती हूँ. और इसका वॉल्यूम फुल कर दें। आ रही है आवाज? नहीं, आपको ना शेयर टैब करना पड़ेगा। आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं, उसके अंदर ऑप्शन नहीं होती। टैब करेंगी नीचे तो उसके अंदर ऑप्शन आती है कि शेयर ऑडियो ऑल्सो। Share tab, this one. Okay. The world's leading analytics software जी, अब on आ रही है आवाज़। AI CRM. We've gone beyond visualization. Tableau empowers you to see and understand your data. It's been our mission since 2003. Today, with the world's leading analytics software on the #1 AI CRM, we've gone beyond visualizations to drive businesses forward with AI-driven insights. No matter your analytics needs, Tableau has the solution.
Prefer to get up and running quickly? Tableau Cloud is for you. Tableau Cloud is a complete cloud-based solution. This means you don't need to purchase, install, configure, or maintain any servers, software, or underlying infrastructure. Tableau handles all of that for you. Log in from anywhere on any device and see your data come to life with powerful visualizations and metrics that you can self-serve, embed, and share. Tableau Cloud is your choice for fast time to insights on a fully hosted infrastructure for scalability, governance, and enhanced collaboration. Need even more control with on-premise infrastructure? Tableau Server brings powerful analytics within your own server deployments. Unlock and analyze your data without leaving your controlled network, providing peace of mind and meeting specific governance requirements. You can also customize Tableau to integrate enterprise-grade analytics with your existing business applications. Tableau Server is your option to resource and configure for specific business needs and performance demands with full control. So, whether you are deployed in the cloud or on-premise, or a hybrid approach, Tableau gives you choice and flexibility without sacrificing security and governance. Now, imagine everything you love about Tableau, but supercharged with agentic AI. More scalable, more efficient, more intelligent. Meet Tableau Next. Tableau Next brings together an open data layer, AI semantics, modern visualizations, and integrated actions, empowering humans and AI agents with proactive, conversational, and intelligent insights. Built on Data Cloud, Tableau Next breaks down data silos across your data investments by creating a single, trusted view and understanding with zero copy. And integrated with Agentforce, Tableau Next gives your team a 24/7 data expert, using AI agents to proactively spot issues, offer intelligent recommendations, and take action for you so you can skip endless digging through dashboards. All of this delivered in your flow of work, whether that's Slack, Salesforce, or other third-party applications like Workday and more. Regardless of your industry or use case, Tableau empowers you with trusted AI, data, and insights for better business outcomes. Join the Data Fam on Tableau Public, Slack, and in person to grow your data, analytics, and AI skills. Get started with Tableau today on tableau.com. So that's a comprehensive introduction of Tableau. More from Rida will be sharing insights regarding Tableau Data Fam and what some insights about the Tableau community as well. Okay. So that was the brief overview of Tableau, and that video shows that what kind of products and Tableau is providing. It includes the Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, and Tableau Next, and they have multiple products. They are providing solutions through their multiple products for different kind of users. That user can be a business user or a technical user. So let me move towards the next slide. आप स्लाइड शो में जा सकते हैं. Yes, thank you. ये नोटिफिकेशन भी हाइड कर दे नीचे. So the data fam basically consists of some data evangelists or some data professionals. So it basically consists of multiple platform that includes Tableau Public, Tableau Forums, community blogs, some user groups. User groups can including the Pakistan user groups and also some educators like students and teachers. Basically, I will be providing a bit of a walkthrough of these different platforms. So in Tableau Public, you can sharing your own visualizations or taking some inspirations from the experts. The Tableau community forums
you can take some help regarding any queries you face during creating your own visualization, or any kind of problems you are facing in calculations, or any kind of errors. And there is a community blog. In community blog, you can take some inspirations from best practices from the experts. The experts include some Tableau visionaries and social and Tableau ambassadors. um, so I will be providing some walkthrough. Uh, Now there is a Tableau Learning Hub. You want to get started with the Tableau, you want to learn or want to sharpen your skills with Tableau, then Tableau Learning Hub is the best platform. Now, like continue to Tableau Public. You want to take some inspiration um, from existing Tableau visualizations from the experts, or if you want to learn some new visualization skills, if you want to connect with other data professionals. So Tableau Public is a great platform, and also you can create your own portfolio, and that gives you a chance to get hired with uh, other companies. So want to share some queries with the Tableau community, you want to you want to provide some feedback. So you want to provide some feedback related to the Tableau product, as Tableau community or the Tableau employees working in improving their product. And you can join the Tableau community Slack with the help of the QR code displayed in the slide. Um, and you want to share some queries, whether it can be related to the errors, or you want to develop a new visualizations. So Tableau community Slack is very useful platform. So everyone have any kind of questions? अच्छा, जितना भी अभी रिदा ने कवर किया है रिगार्डिंग टैब्लो एंड टैब्लो इकोसिस्टम, डेटा फैम. So if you have any question regarding overall what she has covered, please go ahead and ask the question, as we will move forward to this session by our guest speaker Farhan Ibrahim. Farhan, Rida, I think let's welcome our guest speaker Farhan Ibrahim. He's head of sales at Salesforce, specifically targeting Tableau sales in Pakistan and Asia Pacific region. So he will be sharing some insights around what is coming next in Tableau platform and what a future looks like in this era of AI. So over to you, Farhan bhai. Yes, Shukriya. Thank you, everyone. This is actually a great opportunity for all of us to celebrate the official kickoff of Pakistan Tableau User Group. तो मुझे याद है 2 साल पहले जब हमने Salesforce Tableau को पाकिस्तान में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था. From that day to now, I'm very happy and proud to say that community is growing here. Initially, it was like an informal arrangement, WhatsApp, and individual conversations were happening. But with support of people like Misam, Vakar, Rida, we are now at a stage where we are recognized globally. Vakar and Rida can share their Wiz of the Day have been selected by Tableau globally. And more recently, at our annual conference Dreamforce, there were 2 Pakistanis recognized and they got their golden hoodies. एक तो कुरातुल ऐन थी जो पहली whatever awards are there, it was the first time Salesforce Community Award was introduced and it was a Pakistani who got it. So Quratul Ain won that, and then we also had a developer golden hoodie for Maham. She's also a Pakistani. So this is showing that Pakistan has all the talent. It's just that we needed to give them a right platform and they can grow their personal and professional lives using these platforms.
Can you move to the next slide, Waqar? Yeah, so today actually is our first session, one of many. I'm sure Waqar and Ida will do that. And I can also share my perspective on the analytics phase that we are seeing in Pakistan, especially with Tableau and Salesforce. And of course, all of us would know about reports and dashboard. But now with this, platform with Tableau, and of course, similar other solutions, now industries are taking decisions which are based on some better insights and data, and that's what we are trying to do also. जब हम initially start किया था हमने, there were other players also in the market, but we are happy to say that in Pakistan we have now managed to show our value in different industries, banking, for example, or manufacturing, telcos, public sector, a lot of private organizations also. So this is actually resulting in an ecosystem, which is where I am working with local people, a local community. And when I say community, there are different aspects to that. Of course, one is customers and partners. So we have a community which is where we feel that we are trying to add some value in the local ecosystem, which means customers are buyers, for example, and there are partners who are implementing it or who are training or giving consulting services. And some partners actually have built their own solutions powered by Tableau also. So we managed to, activate that part. Then we also have academic program, which means we have students, universities, teachers, and we provide, of course, curriculum, proper setup, which means licensing and everything is provided free of cost to them, which means that activities, and that academic program also is available. And then thirdly, of course, is like we just heard from Rida, our data fam community, which is the users group, users who are using Tableau in Pakistan. So this maturity has helped us create awareness across industries, across solutions that are available to these community members. And now what we are trying to do with Salesforce is that with the merger of Tableau with Salesforce, the company was acquired in 2019, and now it's almost 6 years. And we have been able to merge that whole platform journey from a separate analytics platform to giving insights in workflows that are available. So, for example, you are working in a screen in an application, you can embed insights just there. And that is one of the vision that we have, that we don't need to press Alt tab and go to another screen. Wherever you are working, insights will come to you, whether it's your collaboration communication solution like Slack or Team or any other solution, or you have your own applications customized or off the shelf. You can just embed analytics there, which means whatever you are doing daily, you will start getting insights. And that's where Tableau introduced this product that Waqar will be talking about later is Tableau Pulse. We all know that AI has changed the engagements that we have been doing in our life personally with ChatGPT, for example. And now so many tools are available from different vendors. So what Tableau did is they also worked on providing AI-powered insights, and so that you can now take a decision based on data, not just some guesswork. We also are happy that organizations are also realizing this change, which means it's not just the reports and analytics and visualization that you need to create. Analytics are now shaping the way companies are growing. So, with Tableau, you can enable yourself with data practices, AI practices. And it is not just in Pakistan. I have worked with many organizations now that they are using Pakistan as a base, and they are serving global customers and community members.
So you have an opportunity personally and professionally to grow in your career using these skills. And that's what businesses are also expecting. And we are trying to do these sessions for you guys. All of you can learn, share your perspective, join our data fam community. And you can accelerate this learning and accelerate in your career. In the end, there are strong commitments from Salesforce and Tableau to invest in Pakistan. We are growing our, of course, employee base covering Pakistan. That is one aspect of that. But Pakistan used to be part of an emerging region, which means a set of countries where we see the potential. And now we are working on making Pakistan as a separate territory to get more direct investment and support from Salesforce and Tableau. That's what we are trying to do as part of this journey. We are very happy to work with all of you, and I would like to again thank the community members here, and I look forward to seeing you also. I travel to Pakistan quite often, and I look forward that we can maybe discuss things also. If there is any way I can be of help, so please reach out, and we would like to discuss that further. So with that, I would like to hand it over back to Rida and Vakar. Thank you, everyone. Thank you, Farhan, for sharing some useful insights with us. Okay, Vakar will be continuing about his career journey and also about his contribution in the community and finally the Tableau Pulse. Thank you, Rida. Before I start my session, we have our mentor and guest speaker Misam with us. Thank you, Misam, for joining. Can you please? I will request him to please share some insights and his remarks about this beginning of this Pakistan Tableau user group. Just a second, Misam. Let me allow you to. Yeah, Misam, can you please? Is your mic working? जी अस्सलाम वालेकुम everyone. Walaikum salam. Thank you so much for joining. Congratulations Waqar and Rida. आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान यूज़र ग्रुप का. Now we are much more evolving. कराची से पाकिस्तान की जाने की वजह से जो फरहान भाई है उन्होंने भी बताया कि वो पाकिस्तान को एक अलग से रीजन बनाने जा रहे हैं. तो मुझे याद है कि मेरी फरहान भाई से एक होटल में मुलाकात हुई थी और हम उस टाइम पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और फरहान भाई ने कहा था कि मैं इसको करूँगा इंशाल्लाह. और टुडे इज़ द डे कि उन्होंने ये बात बताई कि वो इस पे काम भी कर रहे हैं. तो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड, क्योंकि ओवरऑल मुल्क का नाम इसी तरीके से बनता है और फिर ऑब्वियसली यहाँ से टैलेंट जब बाहर दिखता है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बनती है. आई सून सी के इंशाल्लाह सूनर लेटर टैब्ल्यू के ऑफिसेस भी जो है वो पाकिस्तान और कराची और लाहौर में होंगे. हमारे पास भी इमेंस टैलेंट है एंड पीपल वुड लव टू सर्व ऑन द ग्लोबल लैंडस्केप. तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एवरीवन. थैंक यू सो मच मिसम. आई नो आपका इवेंट था और फिर भी आपने टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए. रियली अप्रिशिएट इट. मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच. Yeah, thank you, Masam, for all the support. Thank you, Farhan bhai. So let me give a brief introduction about myself. My name is, for those who don't know me, my name is Waqar Ahmed Sheikh. I've been working as in different roles as BI professional, but more recently, I've recently joined Ado AI as a senior BI engineer. So मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी जब मैंने डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी गूगल की तरफ से. उसमें आई फर्स्ट टाइम हर्ड अबाउट टैब्लो. तो मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया, जब उसमें थोड़ा सा डीप डाइव किया, देन आई नेवर लुक बैक. अल्हम्दुलिल्लाह देन उसके बाद से मैंने अपनी विजुअलाइजेशंस पे, अपने डेटा स्किल्स पे काफ़ी काम किया और टैब्लो जो प्रोफाइल है उसको इन्हांस किया. टैब्लो पब्लिक की जो प्रोफाइल है, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन
Can you, Rida, can you please stop sharing your screen so I can share mine? Yeah, thank you. तो जब मैं लास्ट अभी सितंबर में टैबलो एम्बेसडर सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट की थी रिगार्डिंग माय जर्नी व्हिच स्टार्टेड इन बैक इन मई 2023। ये विजुअलाइजेशन काफी वेल रिसीव्ड हुई विद इन टैबलो कम्युनिटी भी और इंटरनेशनली ग्लोबली भी, क्योंकि ये आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ माय जर्नी, वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी, व्हाट initiatives and what visualizations I have created along with throughout my journey। इसमें मैंने स्टार्ट किया था मई 23 में। देन ये जो ब्लू डॉट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन आई हैव मेड अराउंड 45 अराउंड विजुअलाइजेशन ऑन टैबलो पब्लिक। 5 of them are viz of the day। so ये मेरे लिए प्राउड भी होता है कि इतना मुझे ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला डेटा फैम कम्युनिटी की तरफ से ओवरऑल। तो मैंने सोचा इसको इस तरह से विजुलाइज किया जाए कि जो भी एक नया यूजर आया उसको इंस्पिरेशन भी मिले और उसको ये पता चले कि वो जो काम कर रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो उसका कहीं ना कहीं उसका उसका बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। टैबलो ने मेरी पूरे करियर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आई वॉज वर्किंग एज अ बैंकर फॉर लास्ट 14 years। देन आई टुक द डिसीजन टू डाइव deroot my career in a data analytics professional, and Tableau provided me that platform। Tableau itself provided me the opportunity to demonstrate my skills to the होल वर्ल्ड, जिसमें मैंने फिर विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना शुरू की। जो इनके डेटा फैम राउंड अप्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी विजुअलाइजेशन पब्लिश करता था तो उसमें मैं शेयर करता था। देन मीटअप्स होते थे। हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी हमने मीटअप्स अरेंज किए थे कराची टैबलो यूजर ग्रुप प्लेटफॉर्म के थ्रू। उस पे उसका इनिशिएटिव उस पे जाता है मीसम को, मीसम ने स्टार्ट किया था, फिर मैंने भी इसको लीड किया। काफी दफा हमने इस पे स्पीकर एज अ स्पीकर में आया, एज अ होस्ट मैंने वो किया, इसको उस पे पार्टिसिपेट किया। देन मैंने अपनी टैबलो की सर्टिफिकेशन की थी। आई थिंक ये अगर विजुअलाइजेशन अभी इसमें शो हो रही है आपको, अगर मैं इसको दिखाऊं इसके अंदर, ये इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन, यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे जितने भी विजुअलाइजेशन है, ये इसमें आपको मेरे विजुअलाइजेशन भी शो हो रही है। मैंने इस तरह से विजुअलाइजेशन बनाई। देन ये जो ग्रीन डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो मेरे जो विजुअलाइजेशन या कोई भी चीज जो मेरी डेटा फैम राउंड अप, एक वीकली डेटा फैम राउंड अप होता था पहले, अब वो मंथली पे चला गया। उसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने चेंज कर दी टैबलो ने, जिसमें वॉट एवर इज हैपनिंग इन द डेटा फैम कम्युनिटी दे फीचर दैट, उसमें मेरे फीचर होते थे। उसके अलावा ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन टाइप का शेड है ये है हमारे मीटअप्स हैं जो मैंने करवाए थे। देन ये जो कुछ माइलस्टोन है जैसे सर्टिफिकेशन, टैबलो नेक्स्ट एक इनिशिएटिव था एडम मिकाओ, ये है टैबलो विजनरी हैं उनकी तरफ से, वो मैं सेलेक्ट हुआ। देन आई गॉट माय फर्स्ट विजिटरी कॉल सेंटर बैक इन 2024। देन इस तरह से चलते चलते फिर उसके बाद काफी अचीवमेंट्स आई, सेकंड विजिट द डे, देन और भी इवेंट्स होते चले गए। एंड देन फाइनली इट लीड्स टू मी अ टाइटल ऑफ टैबलो एम्बेसडर, which is a huge recognition for myself, and along with which I shared with Rida as well। ये एक मेरी छोटी सी जर्नी है जो मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। आई होप कि इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको ये आइडिया होगा कि आप अपनी किस जर्नी, अपने करियर की किसी भी स्टेज पर हो, आप ये जर्नी, आप ये करियर पाथ पिक कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म योर एंटायर जर्नी। और डेफिनेटली जब आप इस तरह से चीज को परस्यू करते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पब्लिकली दिखाते हैं, तो यू गेट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एवरीवेयर। मुझे फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे इसके थ्रू जो है न्यू जॉब मिल गई, मुझे इसके थ्रू एक वॉइस मिली अपनी चीजें और आइडियाज शेयर करने के लिए, जो सब कुछ मुझे इस प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड किया है।
sharing some of my Tableau public stats यहाँ पे, or even I will share this slides with you. You can also click and go to my Tableau public profile and follow me there. I have some significant stats. I like my visualization have got around 250,000 views on Tableau public with 500 plus followers and 3,000 plus favorite and 5 visit the day. I think it's a significant achievement considering the overall competition in the market. But Alhamdulillah for the love the DataFam community has shown on my profile, Tableau public profile. So let's talk about some what are Tableau user groups. ये भी एक हम आज जो कर रहे हैं वो एक Tableau user group का एक event है. Basically hosting from the platform of Pakistan Tableau user group. बट मे बी बहुत सारे लोगों के जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं उनके जहन में सवाल आता होगा कि ये एक्चुअली ग्रुप होते क्या हैं और आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट हो सकते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं. तो ये होते हैं टैब्लो यूजर ग्रुप जो होते हैं वो कम्युनिटी लेड होते हैं. ये इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले टैब्लो के एम्प्लॉय नहीं होते लेकिन वॉलंटियर्स होते हैं, जस्ट लाइक मी एंड रिदा. हम लोग इसको वो कर रहे होते हैं, वॉलंटियर कर रहे होते हैं विद द सपोर्ट डेफिनेटली बाय टैब्लो. ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ओपन टू एवरीवन है. और इनके जो मीटअप्स होते हैं वो 2 से 3 तरह के होते हैं. एक वर्चुअल होता है जैसे लाइक आज हम अटेंड कर रहे हैं. इन पर्सन होते हैं. इन पर्सन मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला इवेंट इन पर्सन हम 26 के फर्स्ट क्वार्टर में एक इन पर्सन इवेंट भी हम कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह. उसको देखते हैं किस तरह अलाइन करना है, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास यहाँ पे रमजान भी है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा. बट वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू हैव वन इन पर्सन इवेंट इन पाकिस्तान. देन फॉलोड बाय हाइब्रिड इवेंट्स होते हैं लाइक इन पर्सन भी और दोनों का मिक्सचर. So what do we do? Like just like this event, we demonstrate Tableau skills. हम नॉर्मल एक किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, रियल एग्जांपल के ऊपर डेमोस वगैरह दे रहे होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं. जो भी स्पीकर आता है वो अपनी स्किल्स शेयर करता है या बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड विजुअलाइजेशन शेयर करता है या किसी एक टॉपिक के ऊपर वो बात करता है. तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी आपस में कनेक्ट कर रही होती है. Apart from Pakistan Tableau user group, you can join literally any group. There are more than, I think, there are 100 plus groups around the world currently Tableau user group. कुछ industry specific हैं like और कुछ region specific हैं. So आप अपने interest के हिसाब से, अपने topic के हिसाब से भी different Tableau user groups join कर सकते हैं. ये मैंने इस slide में भी यहाँ पे link भी दिया हुआ है. You can just go to this website and you can join just like you have joined Pakistan Tableau user group. You can join literally any group available. Just click on a join a group. अभी यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक ग्रुप हैं, कुछ बिलोंगिंग्स हैं, देन कुछ टॉपिक रिलेटेड भी हैं, कुछ डाइवर्सिटी के बारे में भी हैं. फिर देन यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी हैं, यहाँ से जो 3 है ये लोकेशन स्पेसिफिक हैं. Earlier, we have only one Tableau user group from Pakistan, which was Karachi. Now we have 2, Karachi and Pakistan. Rida and I took the initiative when we become Tableau ambassador to kickstart another group for Pakistan, which should be country level, national level. And Alhamdulillah, our application was approved by Tableau. And so here we are presenting you from the platform of Pakistan Tableau user group. आपको इससे ज्वाइन करने से क्या फायदा बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, आप अपने नेटवर्क बढ़ा सकते हैं. डेफिनेटली जब आप किसी इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद अदर एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स और आप न्यू आइडियाज डिस्कवर करने को मिलते हैं. सो फार मैंने भी अराउंड कोई 25 यूजर ग्रुप्स इवेंट अटेंड किए होंगे, इररेस्पेक्टिव कि वो पाकिस्तान से थे नहीं. तो मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. इन इवेंट्स के अंदर आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स मिल जाती हैं, कुछ ऐसे डेमोज और चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि नॉर्मली हम आपको ना यूट्यूब पे मिलेंगी ना ही किसी ब्लॉग में मिलेंगी. वो यूजर जो स्पीकर होता है वो अपनी
जर्नी और अपना यूज केस आपको दिखा रहा होता है. So that is specific to that person only, right? So once again, thank you for everyone who have joined and already connected to this Tableau user group, Pakistan Tableau user group, newly created. We are trying our best to build a vibrant and inclusive Tableau community in Pakistan. हम जो है इसमें एक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें मैं भी लर्न करूंगा, शेयर करेंगे और इनवाइट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें. इससे क्या होगा कि एक पाकिस्तान का एक जो टैब्लो ओवरऑल एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारा एक इमेज क्रिएट होगा which create also opportunities for the local resources and also provide the opportunity for collaboration and creativity. So हमारा जो goals हैं वो यही है कि एक मंथली एक मीटअप वर्चुअल मेरा अपना टारगेट है कि एटलीस्ट मंथली एक मीटअप होना चाहिए वर्चुअल और we'll try our best to have 1 to 2 in-person event during this year, during the coming year, inshallah. और प्लस जो है आप लोग जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा डेमोस जस्ट लाइक अदर टैबलो यूजर ग्रुप वी हैव विल हैव केस स्टडीज डेमोस आप कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से और इस पे आप लोग डेटा फैम ओवरऑल कम्युनिटी के साथ इंगेज हो सकेंगे इकोसिस्टम का पार्ट बन सकेंगे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं. Lastly, how can you participate? Apart from attending the meetups, I want the community to be evolving, continuously evolving and be engaging as well. जो आप में से अभी सब लोग participate करते हैं, you can also get associated with the Pakistan Tableau user group by suggesting a topic you want us to cover using this form. ये मैंने Tableau user group का जो हमारा main page है Pakistan Tableau user group का उस पे भी provide किया है. जो आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए आप उसको हमें सजेस्ट करें. We'll definitely consider that. Apart from that, you can also apply to become a speaker at Pakistan Tableau User Group. जैसे आज मैंने और रिदा ने स्पीक कर रहे हैं बात कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. आप भी आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है आपका आपकी एक्सपर्टीज में से है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें. We'll definitely have you take you on board. In return, you will get the recognition. You will get the marketing done from our platform and also from the Tableau official platform. You can also participate as a volunteer. आप जो है हमारी community planning में event planning के अंदर हमारी help कर सकते हैं. So to become an active member of this community. इससे जो मुझे फायदे हुए हैं डेफिनेटली जब आप लोग भी इन चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो आपको भी उसके बेनिफिट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे. सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव रिगार्डिंग दिस Tableau यूजर्स एंड कम्युनिटी प्लीज. All good? Okay. So now I'm moving on towards our main topic, which is AI powered insights using Tableau Pulse. अच्छा किसी को आइडिया है अगर कोई बात करना चाह रहा है वो मैसेज ड्रॉप कर दे मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा. अगर कोई इस हवाले से बात करना चाह रहा है व्हाट इज Tableau Pulse is, please raise your hand, drop a message in the chat window so I can unmute him or her. All right. So what is Tableau Pulse? Tableau Pulse is basically a product by Tableau, which is currently available on Tableau Cloud. Tableau Pulse करता क्या है तो हम पहले ही समझ लेते हैं Tableau Pulse क्या है. Tableau Pulse जो है basically just like generative AI है लेकिन with advanced functionalities. Generative AI powered tool है which allows you to connect your data source and share KPIs or key insights from your data just by plugging in the actual data source. और आप उससे
डिटेक्ट करवा सकते हैं ट्रेंड्स, कंट्रीब्यूटर्स एंड आउटलेयर्स, जितने भी आपकी डेटा इनसाइट्स के अंदर वो जो चीजें जो छुपी हुई होती हैं, इनसाइट्स होती हैं जो हम नॉर्मली डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं या जो हमसे मिस आउट हो जाती है, Tableau Pulse कैन डेफिनेटली go deep into your data source and can bring out those insights in front of you. Pulse क्या यूज करता है? Pulse uses the platform to create natural language summaries. अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये एक आपको इस तरह की लैंग्वेज में insights प्रोवाइड करेगा जो कि आम इंसान के लिए समझना आसान होता है। ये कोई jargon यूज नहीं करेगा, ये कोई आपको मुश्किल ग्राफ्स बना के नहीं देगा, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज के अंदर होगा। बार चार्ट और लाइन चार्ट और बायर में ही आपको इंसाइट्स देखने को मिलेंगी इसके अंदर। So I think enough talking on this presentation mode. Let's jump into the overall demonstration. Okay, what are the Tableau use cases on actual Tableau? Acha. So this is I have. Let me just go back to first Tableau Cloud. जब आप Tableau Cloud पे ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होती है जिसमें आपकी अगर किसी आप लोगों में से किसी ने अगर काम किया है Tableau प्लेटफॉर्म्स पे, Tableau सर्वर पे या Tableau Cloud पे, तो कुछ आपके पास ओपन होम स्क्रीन इस तरह की दिखती है। अगर आपके एडमिन ने Tableau Pulse एक्टिवेट किया होगा तो आपको उल्टे हाथ पे यहाँ पे लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट यू विल सी Tableau Pulse. Just click on this, then you will be on the Tableau Pulse home page. यहाँ पर मेरे पास एक बनी हुई है ABC टेक्सटाइल, एक डमी डेटा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो मैंने उस पर डिफरेंट पल्स क्रिएट की थी। तो जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक ऊपर एक ओवरऑल समरी दिखाता है यहाँ पे, राइट, कि ओवरऑल जो भी हो रहा है आपकी डेटा सेट के अंदर उसकी डेली की समरी रिफ्रेश होकर आपके सामने आ जाती है कि व्हाट इज हैपनिंग अंडर द हुड इन योर डेटा, मंथली सेल्स, प्रॉफिट, जो जो आपने केपीआईज और जो भी आपने पल्स क्रिएट की हुई होंगी। एक पल्स हम किस तरह बनाएंगे वो भी हम आगे देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ओवरऑल होता कैसा है इसका इंटरफेस। अच्छा, जितनी भी मेरी पल्स क्रिएट होंगी जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे सामने यहाँ पर शो हो रही होंगी, राइट। मेरे पास और भी मैट्रिक्स बने हुए हैं, मैं इनको क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा, ये जितने भी बने हुए अराउंड 75 के करीब इसमें हमारे पास पल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये डिफरेंट पल्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिस तरह की आप पल्स बनाना चाहें बना सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पास फॉलो स्क्रीन पे शो होंगी। ये आपको एक छोटी सी समरी इनसाइट्स दे रहा है कि कितनी ऐसी पल्स हैं जो अनफेवरेबल हैं, कितनी न्यूट्रल पे चल रही हैं और कितनी अनस्पेसिफाइड है जो हमने स्पेसिफाई नहीं की हुई। ठीक है, लेट्स डाइव डीप इनटू द फर्स्ट पल्स दैट व्हिच इज ABC टेक्सटाइल सेल्स। ये बिल्कुल ऐसे ही डेटा सेट है जैसा हमारे पास एक सुपर स्टोर का डेटा सेट होता है जो आपने अक्सर एक्सप्लोर भी किया होगा। ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास ऊपर ऑप्शन दे रहा है फिल्टर्स के, और यहाँ पर आप टाइम डायमेंशन के साथ या टाइम इंटेलिजेंस की जो फंक्शंस होते हैं उसके साथ प्ले कर सकते हैं। मंथ टू डेट देखना चाह रहा हूँ, मैंने मंथ टू डेट पर क्लिक किया और अब मेरी तमाम इनसाइट्स चेंज हो जाएंगी किसमें, मंथ टू डेट में। नाउ व्हाट आई विल बी सीइंग इज कि मेरी ओवरऑल जो प्रोग्रेस रही है 1 अक्टूबर से लेके 14 दिसंबर। अच्छा, पल्स जो है वो डायनेमिकली आपकी इस तरह काम करता है क्योंकि वो एंकर करता है लास्ट डेट। जैसे फॉर एग्जांपल आज है 14 दिसंबर, तो ये एंकर कर देगा कि आज तक का आपका ये स्टेटस है। अब क्योंकि इसमें मैंने गोल भी डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ये गोल की भी लाइन दिखा रहा है कि हाउ फार और हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। और जो ऊपर आपके सामने लाइन शो हो रही है विच इज शोइंग द फोरकास्ट, and this is the forecast dotted line, and the gray shaded area is the confidence range कि इतना इससे वैरी कर सकती है इस फोरकास्ट से जब तक ये हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो या तो ये मे बी विद इन रेंज होगी 3.9 से लेके 4.8 के दरमियान हमारी सेल्स रहेगी फॉर द क्वार्टर 2025 सॉरी क्वार्टर 4 ऑफ 2025। और ऊपर एक छोटी सी एक प्लेन लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया कि आपको ये इनसाइट्स प्रोवाइड करता है प्लेन लैंग्वेज में। ये इसने ऑटो जनरेट किया है, हमने इसको कुछ नहीं प्रोवाइड किया, हमने जस्ट डेटा कनेक्ट किया है और इसने ये हमें प्रोवाइड किया। दिस क्वार्टर सेल्स इंक्रीज टू 3.4 मिलियन ड्यूरिंग द वीक ऑफ दिसंबर। द लास्ट वीक विद कंप्लीट डेटा वाज बिलो द एक्सपेक्टेड रेंज। अब आपको देखें वीकली भी बता रहा है और ओवरऑल क्वार्टर के हिसाब से भी यहाँ पे इनसाइट्स देखने को मिल रही है।
यहाँ पर आपको ये ओवरऑल एक बिग नंबर दे रहा है जो कि हम नॉर्मली बना रहे होते हैं डिफरेंट केपीआईज में डिफरेंट कैलकुलेटेड फील्ड यूज करते हुए। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना डेटा कनेक्ट किया, सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए होंगी आपको, एक मेजर और एक टाइम डायमेंशन, एक डेट डायमेंशन, ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। और आपको जब आपने, क्योंकि क्वार्टर टू डेट से सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक तो पूरे उस क्वार्टर का अब तक का जितनी भी सेल्स है वो दिख रही हैं। और आपने गोल सेट किया था 3.5 मिलियन, कि हाउ फार यू हैव फ्रॉम योर गोल, व्हिच इज यू हैव ऑलरेडी अचीव 95% ऑफ योर गोल, which is a significant achievement because अभी तक हम जो हैं अपने मंथ के क्लोज में तकरीबन 15 दिन दूर हैं और हमने 95 अचीव कर लिया। तो ये इस तरह से आपको एक इंसाइट्स फौरन से देखने को मिल जाती है कि अच्छा हम अपने गोल से कितना करीब और कितना दूर हैं। अगर मैं इसको ईयर टू डेट कर दूं तो ये मुझे अब ईयर टू डेट के हिसाब से बताएगा कि जिसको हम YTD भी बोलते हैं, 15 मिलियन। अब ये बता रहा है कि आपने इसी साल, पिछले साल जो है वो सेम पीरियड में कितना अप गए हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने जो प्रॉफिट जो सेल्स की है वो 15.9 मिलियन की है और आपका जो टारगेट है वो है 16.7 मिलियन। और ये जो अभी तक आपने अचीव किया है वो 8% ज्यादा है पिछले साल से। तो ये आपको देखें एक साथ काफी सारी चीजें और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में देखने को मिल रही है। हम इसको वापस सेट कर देते हैं मंथ टू डेट पे। अच्छा, सो अब यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं नीचे जाऊँ तो हमारे पास देखें ये बता रहा है कि हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे। क्योंकि मैंने अपनी पल्स बनाते वक़्त 2-3 चीज़ों को एज़ अ स्लाइसर के तौर पे मैंने ऐड किया हुआ है कि मुझे जब भी मैं डेटा देख रहा हूँ तो मुझे उसका कंपैरिज़न दिखाए विद कैटेगरी, इंडस्ट्री, कस्टमर का नाम, सेल्स पर्सन और रीजन। तो जो भी चीज़ें वो इनसाइट्स दिखा रहा होगा, apart from time dimension and actual वैल्यू, वो हमें इसके सराउंडिंग में भी दिखा रहा होगा, राइट? तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अच्छा ये आपका जो रीजन है, तो आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया। उसमें बता रहा है कि आपने जो रीजन था उसमें यूरोप आपका सबसे टॉप परफॉर्मिंग था, एशिया फॉलोड बाय एशिया एंड देन अफ्रीका। और ऊपर आपके पास कुछ यहाँ पे सजेस्टेड क्वेश्चन के ऑप्शन आ रहे हैं कि विच कैटेगरी इंक्रीज द मोस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही तो यहाँ भी आपने यहाँ से पूछ लिया इससे कि भाई कैटेगरी का क्या सीन है। तो इसने आपको बता दिया कि कंपेयर टू लास्ट मंथ कैटेगरी ABC डिक्रीज, इसकी जो टॉवल जो है उसमें इंक्रीज आया है 19 के से, ऑलराइट। और हेल्थ केयर जो इंक्रीज हुआ है वो 7.5 के से। अब ये इसके अंदर इसने कैटेगरी सेट की हुई है जो डेटा के अंदर अवेलेबल होगी, उसको उसने जाके डीप डाइव किया और आपके सामने इंसाइट शो कर दी कि अच्छा ये इस कैटेगरी में इतना परफॉर्म हुआ है और कंपैरिजन भी खुद ही किया है पिछले उससे, राइट। क्वेश्चंस में इतना हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, सब कुछ ये आपके सामने दिखा रहा है। इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जैसे कंट्री के बारे में पहले हमने देखा, रीजन के बारे में, देन कंट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे ये आपको इंसाइट देते रहेगा। व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड देखना है, इसने आपको ट्रेंड दिखा दिया। हम इससे नेटिवली सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अच्छा सवाल का थोड़ी सी इसमें यहाँ पे लिमिटेशंस होती है कि जो आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी हम सेल्स के ऊपर हैं, तो आप सवाल जो है प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछ सकते, आप सेल्स से रिलेटेड सवाल पूछेंगे इससे। जैसे कस्टमर का नाम है, तो मैं सोचता हूँ who were our top customers। ये देखें, अच्छा ये जैसे ही मैंने इससे सवाल पूछा इसने मुझे दिखा दी कि किस कस्टमर इंक्रीज द मोस्ट। सो देखें कि आपने जिस तरह से आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, इस तरह से आप डेटा के साथ अपने बात कर रहे हैं टैबलो पल्स का। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू शो यू कि हाउ इफेक्टिवली टैबलो पल्स इज वर्किंग। अच्छा एक मिनट, इसमें
सवाल आया है, 1 मिनट, कैन वी सेट फिल्टर टू फाइनेंशियल ईयर दैट इज जुलाई टू जून? अच्छा, इसमें शाहिद साहब आपका सवाल जो है इसमें ये कि आपने जैसे बात की ना जुलाई टू जून, डेफिनेटली इस तरह कर सकते हैं जब हम अपनी डेटा सोर्स बना रहे होते हैं, उसके टाइम पर हम जिस तरह से डेटा सोर्स को सेट करेंगे, उस वैसे ही यहाँ पे दिखेगी। अगर आप इसका फिजिकल ईयर चेंज करना चाहें तो वो बैकएंड पे डेटा सोर्स के अंदर हो जाता है। आप किसी तरह का भी इसमें वो उसको सेट कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये जनवरी टू दिसंबर पे फिक्स है। तो ऑब्वियसली यू कैन डू दिस एज वेल। मैं आपको जब दिखाऊंगा थोड़ा सा उसका डेमो दे दूंगा। फर्दर वी हैव ये ओवरव्यू विंडो थी इसकी। अगर हम इसके ब्रेकडाउन में जाएं तो जो मैंने यहाँ पर उसके डायमेंशन के हिसाब से असाइन किए हुए हैं, तो वो ये डायमेंशन के हिसाब से इनसाइड दिखा रहा है, लाइक इंडस्ट्री, सेल्स, कैटेगरी, डेम रीजन। और अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ अपने, यहाँ पे जो परसेंटेज दिखा रहा है वो विथ रेस्पेक्ट टू दिस टाइम पीरियड है। और अगर मैं इसको प्रोग्रेस के हिसाब से कर दूं तो ये अब दिखा रहा है कि आप अपनी जो आपने गोल सेट किया हुआ उससे आप कितना दूर या कितना करीब हैं। जैसे ये वाला भी 96% पे पहुंचा है, ये 107 पे, तो ये डॉट ब्लैक लाइन से आगे निकल गया। ये आपको ये दिखा रहा है कि आप अपने टारगेट से, अपने गोल से कितना करीब और दूर हैं। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास, जैसे मैं अगर कैटेगरी पे क्लिक कर दूँ तो कैटेगरी, रीजन पे क्लिक कर दो रीजन, सेल्स पर्सन पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे अपने सेल्स पर्सन की जो है ओवरऑल, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल सेल्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जिनको टारगेट असाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ये जो लोग थे इनको कुछ टारगेट असाइन हुए हुए थे, और वो अपने उनके टारगेट की आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप पल्स के थ्रू कर सकते हैं। And the good thing is about Tableau Pulse is it is natively available on any mobile device, Android and iPhone as well. So आप एक Tableau की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, Tableau Pulse आपके पास क्लाउड पे अवेलेबल होगा, आप उस पर लॉग इन करेंगे तो all these insights with interactivity is also available on the your mobile phone. और इसके अलावा टैबलो पल्स आपको ये भी फंक्शनैलिटी देता है कि पुश नोटिफिकेशन आपको सेंड करता है ऑन योर मोबाइल डिवाइस एंड आल्सो इन योर ईमेल बॉक्सेस। सो आपको इससे ये नहीं रहता कि आपको किसी किस्म की क्रिटिकल इनसाइट्स को मिस आउट ना कर जाएं। फरहान भाई, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है, थैंक यू वेरी मच वकार। इसका ये तो एक मतलब आपने ओवरव्यू दिया है। असल मज़ा तो ये होता है कि लोग ये अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार ये कितना मुश्किल होता है क्रिएट करना, बनाना। तो अगर आप थोड़ा-सा वो भी अगर आप शेयर कर दें, क्योंकि आपने सिर्फ डेटा मैप करना है और वो मैं अभी दिखाऊंगा, ये वही नेक्स्ट टारगेट है। हाँ, और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एंटरप्राइजेज़ में रिक्वेस्ट होती है वही होती है कि फ्री फ्लो फॉर्म मिल जाए हमें। तो आप अगर इसको एनहांस Q&A पे हम नेक्स्ट सेशन में हेल्प प्लान कर सकते हैं। तो वी हैव दैट फंक्शनैलिटी क्रॉस मैट्रिक्स। अभी जैसे एक मैट्रिक दिखा रहा है, हाउ कैन वी कोरिलेट डिफरेंट मैट्रिक्स इन वन क्वेश्चन या वन स्क्रीन। तो वो फंक्शनैलिटीज भी एनहांस वर्जन्स के अंदर आपको मिल जाती है। आई मीन इट्स अ पावरफुल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग डेटा। इट हेल्प्स यू विद योर इनसाइट्स जर्नी। जब आप रिपोर्ट डैशबोर्ड देख के जो आपने डिसीजन लेने होते हैं, काफी हद तक को ये सपोर्ट करता है बाय गिविंग यू नेचुरल लैंग्वेज आंसर्स एंड अपडेट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे नॉर्मली हम कोई डैशबोर्ड देख रहे होते हैं तो होता क्या है कि वो डैशबोर्ड एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए बने हुए होते हैं। अगर हम चलें सुपर स्टोर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर ये मैं इससे सवाल कुछ पूछना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकता, ये मुझे उसी हद तक जवाब देगा जो इनसाइट्स और जो विजुअलाइजेशन इसमें बनी हुई है। ये आपके साथ वैसे तो इंटरैक्ट कर रहे हैं आप इसके साथ कि आपने प्रॉफिट देख लिया, आपने ऑर्डर देख लिया। अभी क्योंकि ये वाला एक पेड वर्जन नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है कि हमारी 2 पर्स लाइक प्रॉफिट एंड सेल्स जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इन द पेड वर्जन these all your pearls can be interconnected and you can question anything from any pulse
or regarding your any data within your connected data source. ये इसका एक फायदा ये होता है कि देखें आपके जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए बने हुए होते हैं, वो डिफरेंट जो है टीम्स उसको मॉनिटर कर रही होती है, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। However, Tableau Pulse, the benefit is कि ये रियल टाइम पे होता है, आपका एक ऐसे डेटा सोर्स का कनेक्टेड है जो रियल टाइम पे अपडेट हो रहा है और आप उसकी इंसाइट्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो एक सी लेवल और हायर एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो बहुत डीप डाइव नहीं करना चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एट अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड क्लिक ऑफ माउस जो है ना वो इंसाइट्स मिल जाए और बहुत वो क्लियर कट हो कि भाई कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ, तो वो आपको ये चीज टैबलो पल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये टैबलो पल्स जो है दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि इसको क्या बनाना भी इतना आसान है या ये भी कोई साइंस है? तो अगर आप में से डैशबोर्ड किसी ने बनाया है तो डैशबोर्ड के मुकाबले में इसको बनाना इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें कनेक्ट करनी है, एक डेटा सोर्स अपना कनेक्ट करना है और 2-3 इसमें वो अप्लाई करनी है अ, उसकी फंक्शनैलिटीज़ एंड इट विल बी ready to work like a regular. So let me just give you a demo, a brief demo to how to create a pulse. अभी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट सेल्स वगैरह की बनी हुई है एबीसी टेक्सटाइल की, मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं सुपर स्टोर की किसी डेटा सेट की। आपने अपने सिंपल सुपर स्टोर डेटा सेट, अच्छा यहाँ पे किसी को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब डेटा सोर्स को कैसे कनेक्ट करना होता है? नॉर्मली जो आपके जो डेटा सोर्सेज होते हैं वो पब्लिश्ड होते हैं या आप पब्लिश करवाते हैं उनको अपने टैबलो सर्वर पे या क्लाउड पे? अभी क्योंकि हम क्लाउड की बात कर रहे हैं तो मेरे जितने भी डेटा सोर्स हैं वो मेरे यहाँ पर पब्लिश हुए हुए हैं। अगर मैं टैबलो क्लाउड में जाता हूँ, अगेन मैं इसको भी डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आप सबको जाके दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके हम अपनी डेटा सोर्सेज को पब्लिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि मेरी ऑलरेडी कितनी डेटा सोर्स पब्लिश है, मैंने इस पे क्लिक किया, तो जितनी भी मेरी टैबलो क्लाउड के ऊपर डेटा सोर्सेज पब्लिश्ड होंगी, तो वो ये सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये सारी डेटा सोर्सेज मैं अपने टैबलो पल्स में को बनाने में यूज कर सकता हूँ, राइट? हम आ जाते हैं वापस टैबलो पल्स के इंटरफेस पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू मैट्रिक डेफिनेशन। अब मैं एक न्यू मैट्रिक की डेफिनेशन यानी कि एक न्यू पल्स बनाने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया इस पे और सिंपली आई विल सर्च माय डेटा सोर्स व्हिच इज सुपर स्टोर। कोई भी सुपर स्टोर को ले लें आप। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जो पल्स आपने बनाने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी अगर वो बनी हुई होगी तो ये एरर देगा, अगर नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं सेल्स की बनाने की, अगर सेल्स की नहीं बनती तो फिर हम इस पे प्रॉफिट पे जाएंगे। मैंने इसका नाम दे दिया सेल्स पल्स फॉर सुपर स्टोर। मेजर क्या है? मेजर आपका वही है जो आप देखना चाह रहे हैं, जिसका ट्रेंड, जिसके एनालिसिस आप देखना चाह रहे हैं। एक आइटम सेलेक्ट होगा ओनली विच इज अवर सेल्स। मैंने लिखा सेल्स और सिलेक्ट कर लिया। एग्रीगेशन मैंने अप्लाई की हुई है, सम होगा और हमें रनिंग टोटल दिखाएगा, यानी कि कंटिन्यूस दिखाएगा, पीछे का सम करते हुए एग्रीगेशन में आपको फॉर्म में दिखा रहा होगा। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसकी टाइम डायमेंशन विच इज अवर ऑर्डर डेट। अच्छा, अभी यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है वो दिखा रहा है एक तरह से फ्लैट लाइन। ये हम आगे जाके इसको सही करते हैं। होता क्या है कि ये अज्यूम करता है बाय डिफॉल्ट कि आपका जो डेटा सेट है उसमें लेटेस्ट आज तक का डेटा मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे डेटा सेट तो आज तक का है ही नहीं, मेरा डेटा सेट तो जो है वो ओल्ड है, वो एंकर हुआ है पिछले साल दिसंबर तक का डेटा है, तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। वो किस तरह सेट करते हैं हम आगे देख लेते हैं। फर्दर अब मैंने अभी तक कितनी चीजें ऐड की है इसमें? सिर्फ 2, एक सेल्स और एक टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मेरे एक्स एक्सेस पे आ गई और वाई एक्सेस पे मेरा सेल्स शो हो रहा है। यहाँ पे ये मुझसे पूछता है कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं किस किस बेसिस पे आप इसको फिल्टर करके देखना चाहेंगे पल्स को। तो मैं उसको बताता भाई मुझे कैटेगरी के बेसिस पे देखना है, मे बी मुझे रीजन के बेसिस पे भी देखना हो, मे बी मुझे इसके अलावा अपने
प्रोडक्ट के नाम या प्रोडक्ट प्रोविंस के नाम से भी देखना हो, मे बी मुझे इसके अलावा एक सब कैटेगरी के बेसिस पे भी देखना हो, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी, राइट? ये जब चीजें सेट हो गई, आपने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हैं कि करेंसी है, परसेंटेज है, क्या है। मैंने करेंसी डिसाइड किया तो यूएस डॉलर आ गया, मैंने करेंसी दिखा दी कि भाई यूएस डॉलर के अंदर भी डिनोमिनेट करना चाह रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर आपके पास पीछे ऑन द लेफ्ट यू हैव आल्सो अ विंडो विच इज शोइंग आप किस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। अभी आप इसकी कोर डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। जब आपकी ये तमाम चीजें एक्यूरेटली डिफाइन हो जाएंगी एज पर क्राइटेरिया सेट बाय टैब्लो, आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा, यू आर गुड टू गो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन विच इज टाइम। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि आपने इस वक्त जो टाइम है वो, क्योंकि इसमें डेटा पुराना है, इसमें लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको फिक्स के बजाय इसको सेट कर दूंगा डायनामिक पे। अब डायनामिक पे करने से क्या होता है कि आपका जो डेटा होगा, जब तक का लेटेस्ट होगा वो वहां पे लाके एंकर कर देगा। अब क्योंकि इसमें डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का लेटेस्ट था, तो उसने वहां पे लाके इसको एंकर कर दिया, ये वहीं तक का उठाएगा। लेकिन जो मैंने एबीसी टेक्सटाइल दिखाई थी आपको, उसमें डेटा रियल टाइम पे ये दिखाया हुआ है हमने, क्योंकि वो हमने डेमो के लिए भी यूज की हुई है कुछ जगहों पर, तो हमने इसको रियल टाइम पे दिखाया हुआ है कि उसमें डेटा डेली बेसिस पे आ रहा है। तो पल्स का पर्पस ही ये होता है कि आप रियल टाइम पे अपना एक्चुअल डेटा को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। अभी हमने इसको जब डे पे सेलेक्ट किया, फिर मैं इसकी ग्रैनुलैरिटी भी सेट कर सकता हूँ कि मिनिमम क्या हो। अब क्योंकि मेरे डेटा सेट के अंदर टाइम नहीं है, तो इसलिए ये मुझे डे दिखा रहा है। मैं इसको वीक के पर सेट कर सकता हूँ, मैं इसको मंथ पे सेट कर सकता हूँ। अब जब मैंने वीक पे सेट किया तो अक्टूबर का वीक और लास्ट दिसंबर का वीक दिखा दिया। मैं इसको मंथ की बेसिस पे सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। फिर ये हमें पूरे साल का दिखाएगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, नॉर्मली हम इसको डे पे देख रहे होते हैं मिनिमम ग्रैनुलैरिटी पे, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस। आपका जो भी यूज केस आप उसके हिसाब से भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो आपके पास इनसाइट शो हो रही है या यहाँ पे डिफाइन होती है कि आप कंपैरिजन किस चीज से करना चाह रहे हैं। अपने प्रीवियस पीरियड से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं या पिछले साल से कंपैरिजन। दो तरह के आपको ये दे रहा है। मैंने इसमें दोनों सेट किए हुए क्योंकि दोनों अलाउ कर रहा है। एक प्राइमरी जो है मेरा पीरियड सिलेक्शन जो कंपैरिजन है वो पिछला पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि हम दिसंबर 24 देख रहे हैं, तो पिछला पीरियड कौन सा होगा, नवंबर 24। और उसका पिछला साल यानी कि सेम मंथ लास्ट ईयर विच इज दिसंबर 23, उससे कंपैरिजन कर रहा है आज की सेल्स का। तो ये यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। अगर आप इसको नन कर देंगे तो नीचे वाला चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पिछले पीरियड से करना चाह रहे हैं, अभी हम दोनों से करना चाह रहे हैं ना, दोनों को सेट कर दिया। अगर आप किसी किस्म का इसके अंदर ये जो ये फील्ड है इसकी एज मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप सेट कर सकते हैं। रेफरेंस डेट वगैरह जैसे कोई कंपैरिजन आप एडिशनल करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे डिफाइन होता है। आपने फॉर एग्जांपल एक अलग से कैलेंडर बनाया हुआ है, जैसे पावर बीआई में होता है, तो कस्टम कैलेंडर्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर डेट्स मौजूद है, तो हम वी विल स्टिक विद द ऑर्डर डेट ओनली। एंड अभी हमारे पास यहाँ पे इस स्क्रीन पे कोई एरर नहीं है, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि गोल डिफाइन करने का ऑप्शन होता है। मिसाल है कि मेरे पास अभी डेटा सेट के अंदर कोई भी गोल डिफाइन नहीं हुआ हुआ, तो मैं क्या करूंगा, एक गोल डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी क्योंकि मेरे पास किसी किस्म का वो नहीं है, तो मैं एक क्रिएट एडवांस एडिटर में जाके एक गोल डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई, इसका नाम दे दिया सेल्स गोल, और सिंपली इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से। ओके, और इसको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर कि ये मेजर में आ गया और टाइम डायमेंशन मेरी वही रहेगी। एज सिंपल एज दैट। आपने और कुछ नहीं किया, आपने एक अपना एक हाइपोथेटिकल एक गोल सेट कर दिया कि जो मेरी ऑलरेडी सेल्स है उसका 1.25 यानी कि 25% अबव रख के मैंने गोल सेट कर दिया, अप्लाई किया। ओके,
ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके सामने ऊपर एक डॉटेड लाइन शो हो रही है विच इज शोइंग योर गोल एज वेल। तो हाउ सिंपल इज दैट कि आपने आराम से अपना एक कोई भी गोल आप अपनी परसेंटेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डेटा सोर्स के अंदर थ्रेशोल्ड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे या तो आप गोल डिफाइन कर सकते हैं या डेटा के अंदर एक थ्रेशोल्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स ओन अप टू योर कॉल। अच्छा, यहाँ पर आपसे इनसाइट से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वैल्यू गोइंग अप इज न्यूट्रल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। डेफिनेटली एक बिजनेस के लिए जितनी सेल्स बढ़ेगी तो वो उसके लिए एक फेवरेबल बात होगी। तो ये यहाँ पे सवाल इसलिए पूछता है कि उस हिसाब से ये इसको जितनी भी हमारे बार चार्ट्स होते हैं या जो कंपैरिजन मैट्रिक्स होते हैं उनको कलर असाइन करता है। अगर मैं इसको अनफेवरेबल कर दूंगा तो इट विल स्टार्ट शोइंग इन कलर्स, और अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, इट शुड बी डेफिनेटली, तो ये ग्रीन कलर में शो हो जाएंगे, राइट? क्योंकि अभी आपकी ये जो सेल्स ऊपर जा रही है वो फेवरेबल बात है। ये थोड़े से एडवांस इसके हैं कि आपकी ये यहाँ पर ऐड करना चाहें कि कोई कोरिलेटेड मैट्रिक्स है, तो हम इस वाले टॉपिक को ज़रा फ्यूचर इवेंट्स के लिए रखते हैं, ये ज़रा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक चीज़ मैंडेटरी है, रिकॉर्ड आइडेंटिफायर। अगर मैं यहाँ पे इसको स्विच ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड टू डिफाइन अ रिकॉर्ड आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड आइडेंटिफायर इज़ आपकी जो डेटा सेट है जिसकी आप पल्स बनाने जा रहे हैं, उसमें डेफिनिटली कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम होगा जो का प्राइमरी होगा। इसके केस में हमारे पास जो प्राइमरी होता है वो होता है ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा, एक ऑर्डर आईडी। इट शुड बी यूनिक। अगर ये यूनिक ना हो तो फिर आपने इसकी एक कंपोजिट की बना के कुछ इस तरह से इसको करना है कि ये ऑर्डर आईडी यूनिक हो जाए। ये क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं कि बस ये मेरा यही जो है वो आइडेंटिफायर है। अच्छा, क्या होता है, नीचे आ जाते हैं ट्रेंड्स एंड चेंजेस में से। यहाँ पे जो नीचे आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑल these are you can define different parameters, different metrics, different conditions, क्योंकि कुछ ऐसी situations होती हैं जिसकी बेसिस पे हमारे जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती, या किसी किस्म की वेदर मूवमेंट, और उनको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगेन दीज आर सम एडवांस टॉपिक, आपको यहाँ पर इनको डिफाइन करना मैंडेटरी नहीं है। ये जो मैंडेटरी होता है उस पर स्टैटिक बना हुआ होता है, तो आप इसको भी एज इट इज छोड़ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दे आर स्विच्ड ऑन, और ये अपने तौर पे काम कर रही है, इसको भी यहाँ पर हमें छिड़ने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट करिए। या अब ये गवर्नेंस का पार्ट आ गया। जो भी आप पल्स बनाएंगे विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट टू एनीवन, जो भी उसको वो देख रहा होगा, जिसके पास पल्स का लाइसेंस होगा, जिसके पास सॉरी क्लाउड का लाइसेंस होगा। आप चाहते हैं क्योंकि ये आपने पल्स बनाई, तो आप इसको सर्टिफाई भी कर सकते हैं कि वंस इट इज प्रोडक्शनाइज्ड। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एक चीज जब बन रही होती है तो हम उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जब 100% ओके हो जाए, वैलिडेट हो जाए यूजर उनके पास से हर तरफ से, तो हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई दिस इज सर्टिफाइड। यहाँ पर एक चेक आ जाएगा कि दिस इज सर्टिफाइड पल्स विच इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड। आप चाहते हैं कि मेरी पल्स जो है वो मेरे अलावा कोई एडिट ना करे, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन, इसको एडिट की रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई ओनली वकार कैन एडिट, एंड दैट्स इट। इसके कोई गोल्स को भी ना छेड़े, तो आपने ये भी कर दिया और ओके कर दिया। देन यू क्लिक सिंपली ऑन सेव। So here you have it, your pulse ready to be used. So I think इतना कोई खास मुश्किल नहीं था। अगर किसी को कोई इसमें मुश्किल लगी हो या कोई सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक या जो आप चाहते हैं कि मैं रिपीट कर दूं, प्लीज आस्क इन द चैट विंडो। I think there is a question from Jalal. हाँ हाँ जलाल, इसमें हम डेफिनेटली अच्छा, यूजर अलाउ नहीं करेगा, जो पल्स बना रहा होता है ना वो थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है। आप जैसे भी मैंने एडिट में जाके मैं वापस दिखाता हूँ, एडिट में जब जाते हैं हम,
यहाँ पर गवर्नेंस के अंदर अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो जो फॉलो कर रहे होंगे ना पल्स, वो इसको थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हैं। और पुश नोटिफिकेशन का ये सीन है कि जब आपने वापस इसको कैंसिल करता हूँ मैं। अभी जैसे ये मैंने पल्स बनाई है, इसका नाम रखा है सेल्स पल्स फॉर सुपर स्टोर। अब इसको हम नाम को इस दफा कॉपी कर लेते हैं। ये सभी बन चुकी है। अगर मैं अपने वापस उसमें जाता हूँ, ये यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। देखिए यहाँ पर अभी भी कोई भी वो वाली पल्स कहीं पर भी आपको शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया। यहाँ पर आपके पास टैबलो पल्स की स्क्रीन पे सिर्फ वही पल्स शो होती है जिनको आप फॉलो करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, मैं सर्च करूँगा, हियर आई हैव इट। यहाँ पे जाके इसको मैं फॉलो करूँगा। जब मैं फॉलो करूँगा तो ये मेरी स्क्रीन पे शो होंगी। अच्छा, अब आप ऐसा है कि इसमें यूज़ केसेस होते हैं कि कोई पल्स सिर्फ स्पेसिफिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पल्स बनाई जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए थी। आप चाहेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पर्सनल्स देखें। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप जाएँगे उनको फॉलो करवा देंगे। और सिर्फ फिर वो क्या होगा कि वो पल्स सिर्फ उन्हीं को दिख रही होगी जिनसे रेलेवेंट होगी। तो दिस इज़ द ब्यूटी कि हर पल्स हर किसी को नहीं दिखती। अगर जैसे आपके कोई सी लेवल एग्जीक्यूटिव है, वो 2 पल्स को फॉलो कर रहा है, एक प्रॉफिट की पल्स को और एक सेल्स की पल्स को। अभी देखिए यहाँ पे ये दिख भी रही है। तो उनको जो इनसाइट्स पुश नोटिफिकेशंस वगैरह जो मिल रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के और प्रॉफिट के मिल रहे होंगे, नथिंग एल्स। क्योंकि वो उनको लिए मैटर नहीं करता कि अकाउंट रिसीवेबल की क्या पोजीशन है, इन्वेंटरी यूजेज की क्या पोजीशन है, ठीक है? तो इस तरह का सीन है इसमें। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम शाहिद साहब, दी बार चार्ट। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट जो है बार का ही ऑप्शन है। वी कैन नॉट चेंज दी चार्ट टाइप विद इन टैब्लो पल्स, बिकॉज इनका पर्पस टैब्लो पल्स का बनाने का यही था कि इसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जाए। और इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड सेट है कि जो ब्लाइंड चार्ट होते हैं फॉर ट्रेंड एनालिसिस सबसे इफेक्टिव होते हैं, एंड फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस बार चार्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव विजुअल टूल। तो इन्होंने इसको ओवर क्लटर नहीं किया। You can definitely go ahead with by designing any dashboard like this one to create different charts, but within Tableau Pulse you have only these options available for now at least. ये एक सवाल और आया है साइमा की तरफ से, a good question. You have to download Tableau Pulse or it's like ChatGPT. It is the core functionality is just like आप कह सकते हैं कि चैट जीपीटी है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक चैट जीपीटी। द डिफरेंस इज के चैट जीपीटी आपको हमेशा से आंसर देगा। कभी भी आप इससे कोई क्वेश्चन पूछें, और जब भी आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो वो आंसर आपको देता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। उसको एक कॉन्सेप्ट होता है हेलुसिनेशन का। और कभी भी चैट जीपीटी का आंसर, 2 आंसर सेम नहीं होते हैं। आप उससे एक सवाल पूछेंगे, उसकी वर्डिंग में, अगले सवाल की वर्डिंग में, जवाब में डिफरेंस होगा। बट विद रिस्पेक्ट टू टैब्लो पल्स, इसके अंदर जो आंसर आपके पास आएँगे, उसका रिजल्ट, उसका आंसर सेम एज़ इट इज़ होगा जो उसने पहली दफ़ा दिया। बिकॉज़ योर data, your pulse is connected directly to your data and it is limited to your data only. It cannot search internet, it cannot search any LLM model outside your data. Getting my point? तो आपकी जब एक इनसाइट, एक डेटा के अंदर आपके पास एक चीज नहीं है, तो ये आपसे माजरत कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे सवाल पूछता हूँ, अभी यहाँ पर हैं हम सेल्स की पल्स में, व्हाट इज माय प्रॉफिट मार्जिन। अब क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, उसमें मार्जिन नहीं है, तो मे बी ये मुझे ये आंसर ही नहीं देगा इस चीज का। और विच इज गुड थिंग इनफैक्ट। क्यों गुड थिंग है? क्योंकि ये आपको हेलुसिनेट नहीं कर रहा, आपको इधर उधर घुमा नहीं रहा है, आपको अपने डेटा की हद तक रखता है। आपको गलत जवाब कहते हैं ना, गलत जवाब देने से बेहतर है बंदा खामोश ही रहे। फिर ये वही चीज कर रहा है। अब ये सर्च कर रहा है, जाके ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो या खैर माजरत कर लेगा।
I'm sorry, I don't have enough data to answer this question. Getting this? क्योंकि हमने सवाल इससे ऐसा पूछ लिया जो उसके पास था ही नहीं, उस पल्स में नहीं था. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैब्लो पल्स के ये आपको उसी हद तक जवाब देगा, आपको सामने वो नहीं कर देगा किसी के सामने शर्मिंदा कि यार ये जवाब तो बिल्कुल गलत आ गया. डेटा आप अच्छा मैंने इसको टेस्ट भी किया है. जो इनसाइट्स हमारे यहाँ पर आ रही होती हैं, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे परसेंटेजेस शो हो रहे होते हैं, आप जाके इसको अपनी क्रिएट करके देख सकते हैं विजुअलाइजेशन में. इट इज दे ऑल आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड कि ये बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा होता है. अब आपको भी आइडिया होगा जो लोग बीआई की टू इंडस्ट्रीज से हैं या बीआई में काम करते हैं कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस बनाना इस तरह के अलग अलग रोलिंग विंडो, कंप्लीटेड पीरियड की कंपैरिजन, ये कितना एक पेन होता है किसी भी बीआई टूल के अंदर, वेदर इट्स बी पावर बीआई और इवन इनफैक्ट इन टैब्लो इटसेल्फ के काफी मुश्किल प्रोसीजर होता है फिर उसको मेंटेन करना. ये नेटिवली आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहा है. हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली बनाया हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस के अंदर इससे प्रोवाइड कर दिए. अच्छा, कैन वी चेंज, इसका भी आंसर दे दिया. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. तैमूर, यास्मीन, आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, क्या बात है? जुबैर, एनी क्वेश्चन गाइस? Anything which I have forgot or missed to cover? Ilsa पूछ रही है कि can we use it for public viz? No, we cannot use it for public viz at the moment. Tableau Pulse is natively available within Tableau Cloud only. In fact, अभी Tableau server पे भी available नहीं है. उसके लिए हम शायद I think अभी काम कर रहे हैं Tableau उस पे MCP के साथ कुछ use case बन रहे हैं. तो MCP के थ्रू हम Tableau Pulse उस पे यूज कर पाएंगे इन फ्यूचर ऑन टैब्लो सर्वर, बट करंटली टैब्लो क्लाउड पे ही अवेलेबल है सिर्फ अभी इस वक्त. अगर आप लोगों ने शायद प्रदीप को फॉलो करते हैं, प्रदीप एक है विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया. उन्होंने एक विजुअलाइजेशन बनाई थी कुछ अरसे पहले, जिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक टैब्लो पल्स, बट वो भी टैब्लो पल्स में नहीं बनी थी. वो नेटिव डेस्कटॉप पे बनाई है, बस उसका इंटरफेस उन्होंने मिमिक करने की कोशिश की है जस्ट लाइक टैब्लो पल्स. बिकॉज टैब्लो पल्स काफी अच्छा रिसीव हुआ है और क्लाइंट्स को भी हमने जब पिच किया है काफी जगहों पर तो ये काफी पसंद आता है. उनको नेटिवली उनको इजीली आंसर मिल रहे होते हैं. और अगर आप उसके साथ कोई एक कनेक्ट कर दें, अभी नेटिवली इसमें वो अवेलेबल नहीं है कि आप वॉइस के थ्रू इसके साथ चैट कर पाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अरसे में इसके साथ वॉइस के साथ भी इसके साथ चैट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा. Zubair, I was using it 2 years ago when it didn't have this many feature. अच्छा मुझे 2 साल पहले तो मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में. ये 2 साल पहले आ चुका था टैब्लो पल्स? आई एम नॉट श्योर. या तो फिर बेबी फेस में होगा उस वक्त. परण भाई कुछ कह रहे हैं? जी वही मैं कह लगा था, आपने कह दिया था 2 साल पहले. ये बस एक बेसिक इंटरफेस जब चैट जीपीटी दुनिया में आया है, ओपन एआई 11 खुले हैं, तो हर ब्रांड ने, हर वेंडर ने एक डिफरेंट अप्रोच ली थी. जैसे काफी बीआई टूल्स में कोपायलट का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो टैब्लू भी थोड़ा सा ही काम कर रहा था. बट ये जो इंटरफेस है ये भी उस टाइम इंट्रोड्यूस हो गया था कि हम इनसाइट्स डायरेक्टली पुल कर ले रादर देन प्रॉम्प्ट्स दें और फिर जवाब लें. तो दिस इज ऑल ऑटोमेटेड एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट्स you can get insights right there and then. जो मेरा एक्सपीरियंस है कस्टमर्स के साथ काम करके वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ये भी नहीं चाहते कि सवाल आए, वो चाहते हैं कि मुझे इनसाइट्स आए. ऐसा नहीं होता कि मैं पूछूं और जवाब आए. हाँ, जब एक इनसाइट्स आ जाती है उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली उसके अंदर फिर एनहांस Q&A जिस तरह भी हम देख रहे थे वो भी अवेलेबल है.
एक और सवाल है, कैन यू गिव एन आइडिया अबाउट कॉस्ट ऑफ टेबलू क्लाउड? तो आप टेबलू के मेन पेज पे जाएं, वहां पर कॉस्ट मतलब इट्स पार्ट ऑफ टेबलू क्लाउड, आप जस्ट एक्वायर करें एंड इट्स पार्ट ऑफ दैट ऑफरिंग। ये मैंने ऐड किया है इसमें। टेबलू क्लाउड जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है, क्रिएटर लाइसेंस, वो आपको $75 पर मंथ पर यूजर मिल जाता है। और टेबलू एंटरप्राइज का जो लाइसेंस है वो $115 पर मंथ पर यूजर है। ये महल क्रिएटर फरहान भाई, इसमें आप बता सकते हैं इसमें हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस निकली? बेसिकली तो ये तो खैर क्रिएटर की कॉस्ट है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 क्रिएटर जैसे होते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है ईच एडिशनल लाइसेंस स्टार्ट एट लो एज $15 का। तो जो व्यूअर है हमारा स्टैंडर्ड के ऊपर, यू कैन गेट दिस कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग टेबलू पल्स। तो बल्कि इसके अंदर आपको जो फीचर फंक्शनैलिटीज हैं वो टेबलू की स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज पल्स के अंदर दोनों मिल जाती हैं। अब एंटरप्राइज में ऑफ कोर्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको यूजर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, लीनिएज, कैटलॉगिंग चाहिए होती है, तो वहां पर यू कैन अपग्रेड टू टेबलू एंटरप्राइज। दिस इज अ हाई लेवल कंपैरिजन। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एडिशंस आल्सो, अच्छा, ये वो भी स्टैंडर्ड नजर आ जाता एडिशन में क्लाउड में लाइसेंस आ जाता है। एग्जैक्टली। है। टैबलू प्लस बंडल के अंदर आपको और भी ज्यादा चीजें मिल रही है, एजेंट वगैरह भी। हाँ, अच्छा, अगर आप मैं टेबलू पल्स के इसमें लाइन देखें तो वो तीनों के अंदर अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में भी, एंटरप्राइज में भी और प्लस में भी। अच्छा, एक चीज और मैं दिखा देता हूँ यूजर्स को। जैसे अगर हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन है क्लाउड में, विद टैबलू एजेंट which is available within Tableau desktop version as well. If you are connected to Tableau Cloud, for example, let's create a workbook। या करके हम जाते हैं सबसे पहले डेटा सोर्स में, किसी भी एक डेटा सोर्स को ओपन कर लेते हैं। एक और सवाल है, मीनवाइल साइमा पूछ रही है, डू वी हैव टू अपलोड डेटा लाइक टेबलू पब्लिक? तो यस, अगर आपने कोई इनसाइट बनानी है तो आपको डेटा तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए टेबलू क्लाउड में आपको स्टोरेज भी मिलती है, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट योर डेटा सोर्सेज, और मैन्युअली फाइल अपलोड करनी है तो मैन्युअली कर लें। वी हैव अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड टेबलू ब्रिज, क्योंकि कई एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिक के ऊपर डेटा एक्सपोर्ट के लिए देन यू कैन यूज टेबलू ब्रिज व्हिच इज अ वीपीएन चैनल, तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू एनी डेटा सोर्स ऑन प्रेमिस एज वेल। तो डेटा आपका बेशक ऑन प्रेमिस पे है, यू कैन पुल द डेटा टू टेबलू क्लाउड। अच्छा, इसमें मैं एजेंट के बारे में बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आपने डेटा कनेक्ट किया अपना टैबलो से सेल्सफोर्स का, उसके थ्रू मैंने एक विजुअलाइजेशन ओपन किए, कनेक्ट किया अपने वर्कबुक के साथ। तो इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग एनीथिंग, आई कैन easily ask Tableau agent to design a quiz for me based on this available data। ये फीचर भी Tableau क्लाउड के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप इससे सवाल पूछते हैं, who are my top 10 customers। इसमें कस्टमर का नाम आ रहा है, आई थिंक, फ्रॉम वेस्ट रीजन। अच्छा, दिस इज अ डिफरेंट ऑफरिंग फ्रॉम टैबलो। ये देखें आप, इसने क्या किया, वेस्ट रीजन के ऊपर जाके कॉन्टेक्स्ट फिल्टर लगाया, कस्टमर का नेम पुल किया, यहाँ से सेल्स को लेकर आया, और आपके सामने टॉप 10 कस्टमर रख दिए। हाउ अमेजिंग इट इज। आपको विजुअलाइजेशन अगर नहीं आती बनाना तो आप इससे नेटिवली भी बनवा सकते हैं। सो ये एक एजेंट एक थोड़ा सा उसका फीचर है जो कि अच्छा, ये एजेंट जो विजुअलाइजेशन बना रहा है ये शीट लेवल पे अवेलेबल है। डैशबोर्ड आपको डेफिनेटली बनाना होगा कंबाइन करके, जैसे नॉर्मली हम बना रहे होते हैं। एक ये डैशबोर्ड के अंदर कलेक्टिव एक कलेक्शन ऑफ शीट्स हो जाती हैं। सो वो डैशबोर्ड लेवल पे अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन हैव इट ऑन योर टैबलो वर्कशीट। अच्छा, हाँ, डेटा को कैसे अपलोड करते हैं, लेट मी चेक इफ आई हैव एनी डेटा अवेलेबल। सो मैं आपको एक बता देता हूँ कि कैसे, थोड़ा सा एक यूज केस हो जाएगा। एक्सपोर्ट, यस,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है, मेरे पास यहाँ पर ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन का डेटा अवेलेबल है। ये भी एक डमी डेटा ही है, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू अपलोड अ डेटा सेट इन अ टैब्लो एनवायरनमेंट, टैब्लो क्लाउड एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ जाएंगे, अपने पास आप क्लिक करेंगे पब्लिश अ डेटा सोर्स। आप यहाँ होम पेज पर आ जाएं और यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है पब्लिश डेटा सोर्स। एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जाना है सिंपली, आपके पास डेटा कनेक्टर का पैन ओपन हो जाएगा और आपके पास ये डिफरेंट, आपको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेज से पहले आपको वो दिखा रहा है, फाइल्स का ऑप्शन दिखा रहा है, डिफरेंट कनेक्टर्स के जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, किस किस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं वो ऑप्शन दिखा रहा है, और ऑलरेडी जो बने बनाए एक्सेलेटर्स हैं उनके भी ऑप्शन दे रहा है। बट सिंस वी हैव एक्सेल फाइल, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर लेते हैं। हम जाएंगे टैब्लो में और यहाँ पर मेरे पास डेटा आ रहा था, ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन जोन। ओके, ठीक है, ये आपका डेटा सोर्स पब्लिश हो गया है और आपने सिंपली प्रेस करना है पब्लिश एज, और जहां पर भी आपने सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं सेव कर देता हूँ ABC, इसका नाम रख देते हैं ट्रांजैक्शन डेटा डमी। इसको मैंने सब पब्लिश कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये आपका जब डेटा सोर्स पब्लिश हो जाता है तो इट इज ओनली अ डेटा सोर्स। आप यहाँ पे स्क्रैच पैड पे उसकी टेस्टिंग तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट विजुअलाइज हियर, बिकॉज आपके पास देखिए यहाँ पर शीट ऐड करने का या वर्कबुक ऐड करने का या डैशबोर्ड ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। आपने ये कर दिया, आपने पब्लिश करने के बाद इसको यहाँ पे चले जाएं, वापस टैब्लो क्लाउड पे आ जाएं वापस, और मैंने जो भी ऐड किया है डेटा सोर्स, ये मैंने ट्रांजेक्शन का ऐड किया अभी। अब ये मेरी एक डेटा सोर्स बन गई है। अब इस डेटा सोर्स को मैं अपने टैब्लो पल्स में भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज इट टू क्रिएट एनी विजुअलाइजेशन एज वेल। मैं सिंपल इसमें आ जाऊंगा और यहाँ से एक इसका फ्लो भी बना सकता हूँ, विच विल ओपन इन टैब्लो प्रैप, और इसकी मैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी बना सकता हूँ। जब इससे आपके कनेक्ट कर देंगे तो यू कैन डू एनीथिंग विथ योर डेटा। ये एक काफी डिफरेंट टॉपिक है इससे हटके, लेकिन सवाल आया था तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं कि किस तरह इसमें एक डेटा सोर्स पब्लिश होती है। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टैब्लो पल्स की विजुअलाइजेशन हम टैब्लो पब्लिक पे शेयर कर सकते हैं? पल्स की नहीं कर सकते। टैब्लो पब्लिक पे क्लाउड पे आप जो भी विजुअलाइजेशन बना सकते हैं उसको आप कर सकते हैं, लेकिन पल्स अभी शेयरेबल नहीं है। आई होप फरहान भाई मैं सही हूं ना इस बात पे कि मेरा ख्याल है कोई अवेलेबल फंक्शन अभी तो नहीं ये है इट्स अ फीचर ऑफ पब्लिक। टेब्लू क्लाउड बेसिकली। तो अभी टेब्लू पब्लिक के यस, ऊपर तो टेब्लू पल्स नहीं है। हाँ। एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? I think this is it for from our side. If you have any question, please go ahead, ask, so we can wrap up then.
All right. फरहान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? Just a closing remarks from your side. No, I think thanks for organizing it. अभी तो आज पहला है. I hope we can have many of these with more attendance as well. So really appreciate your effort, Rida, Waqar, and everyone who joined the call today. Thank you, everyone. Thank you Thank for you, joining. everyone. Really appreciate it. I will definitely wait for your feedback. You will get a form in your email. Kindly do fill that out. We definitely need your feedback at this moment, crunch moment. We are just beginning a journey, Tableau journey in Pakistan from Pakistan platform. So it's a big milestone for every one of us. Thank you. Let's close this down. Thank you, everyone. Take care. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Rida, कुछ कहना चाहेंगी? Thank you. No, not for now. Thank you, everyone. Allah Thank you, Hafiz. Thank you. everyone. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.